بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ لوگ اپنے دل کی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اگین میں یہی بولوں گی کہ آپ لوگ تہجد گزار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے محبوب پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ کب مجھ سے دعا مانگے اور میں کب ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب ہے، رات کے ایک تنہائی حصے میں ملے گا۔ اللہ تمہیں اور تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا اور کن فرما دے گا، اور تمہاری دعائیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ان کو بھی قبول فرمائے گا تہجد میں۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے التجا کرے، مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اس کی دعاؤں پر آمین بولوں۔ تہجد کی طاقت کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ ایک بار اپنے نرم بستر سے اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں جا کر اللہ کے لیے نہیں اپنی من پسند کی دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ تہجد میں شفا کا ملنا، ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں موجود نہ ہو۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے خزانوں میں سے نوازتا ہے۔ جو بہن بھائی میرے 2 سال سے تہجد پڑھ رہے ہیں، سوچئے وہ اللہ کے کتنے زیادہ قریب ہوں گے، اور جو لوگ 5-7 سال سے تہجد پڑھ رہے ہیں اور اگر تہجد میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ رب آپ کو پسند نہیں کرتے، بلکہ آپ رب کو اتنے پسند آ گئے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان سے دعائیں مانگنا چھوڑیں۔ بے شک آپ کو وہ اپنے خزانوں سے جلد از جلد کن فرمائے گا اور آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ تہجد میرے دل کا سکون تہجد ہے، یوں نہیں تو نے پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو ممکن ہونا ہوگا۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، آپ تہجد میں اللہ کے پاس جائیں۔ اگر آپ گناہ گار ہیں، اپنے گناہ کیے ہیں اور اگر اس کا کوئی حل نہیں باقی بچا تو بے شک تہجد میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، چھوڑ دو اپنے نرم بستر کو اور کر لو وضو اور رب کی بارگاہ میں چند آنسو لے کر جاؤ اور بولو، اے پروردگار، میں تیرا وہ بندہ ہوں جو گناہ گار ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو اس خوبصورت لمحے میں اپنے بندوں کی بہت زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تہجد کی اذان نہیں ہوتی، یہ مؤذن کی دل کی اذان ہوتی ہے۔ یا رب العالمین، میرے یہ مسئلے ہیں، میری یہ پریشانیاں ہیں، ان سب پریشانیوں کو حل کر دے۔ یا رب العالمین، مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ اس سے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل۔
और आपको पता है इन तीनों दिल का मिलना कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है, और वो भी वक्त तहज्जुद का हो। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। अगर आपको अपनी मोहब्बत चाहिए और आपको लगता है कि वो मोहब्बत आपके लिए बिल्कुल ठीक है, तो आप अपने रब से तहज्जुद के वक्त उसको मांग सकते हैं। और ये नहीं कि आपके घर वालों को उसका इल्म ही ना हो और आप ही सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत करते हों। अल्लाह ताला से वो मांगिए जो आपके लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला से वो नहीं मांगिए जो आपके लिए बेहतर ना हो। 7 आसमानों की पार सफ़र करती है तहज्जुद की दुआएं, कभी मायूस नहीं करती तहज्जुद की दुआएं। तहज्जुद ऐसी लम्हात हैं जो आपके दिल में मोहब्बत पैदा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप लोग तहज्जुद पढ़ें। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। आमीन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दर्द का सजदा, सजदा तहज्जुद। देखो तुम दर्द का सजदा ज़मीन पर करते हो और तुम्हारी सदा 7वें आसमान तक जाती है। तहज्जुद, जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती तब वो तुम्हें सजदे में तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है, और फिर तुम जान जाते हो कि वो जो दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। वो अपने रब के लिए रात को उठता है, वज़ू करता है और रब से मांगता है। फजर और तहज्जुद खामोश नमाज़ें हैं। इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। बाकी नमाज़ें भी अफजल हैं, उनका अपना मुकाम है, लेकिन जो फजर और तहज्जुद की नमाज है वो इंसान को अल्लाह के इतने करीब कर देता है कि इंसान अपने रब से हर चीज़ मांग सकता है। ये सारी कायनात रब की बनाई गई है, बेशक रब से मांगो। मैंने 2-3 बार तहज्जुद की डिटेल वीडियो बनाई है और मेरा इतना दिल करता है कि मैं हर रोज़ आप लोगों को तहज्जुद के बारे में कुछ नया बताऊं। मैं आपको बताऊं जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ते वो लोग भी पढ़ें, एक बार रब से मांग कर तो देखें। रब इतना गफूरुर रहीम है, वो आपकी बातें सुनता भी है, समझता भी है और कबूल भी करता है। और तहज्जुद की दुआ, तहज्जुद का बुलावा फ़र्श से नहीं अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मैं आप सब लोगों के साथ तहज्जुद का टॉपिक शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। मैं ख़ुद कुरान मजीद को पढ़ती हूँ, उसको समझती हूँ, और मुझे लगता है कि जो इंसान तहज्जुद पढ़ने का आदी है, जो तहज्जुद पढ़ता है, वो कितना खुशकिस्मत है, वो अल्लाह के बहुत करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तहज्जुद पढ़ती हूँ और फजर भी पढ़ती हूँ, सारी नमाज़ें पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कौन कौन तहज्जुद गुज़ार है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप ही हम तहज्जुद गुज़ार हैं, तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। हर वक्त हर लम्हा अल्लाह को याद रखा करें। जो लोग अल्लाह को अपने अच्छे वक्त में याद रखते हैं, बुरे वक्त में बिन मांगे ही उनकी दुआओं को कबूल कर देता है रब। और आप सब लोगों को बताती चलूँ, जब रात के आखिरी पहर में अल्लाह तुम्हें चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। अल्लाह अगर ना चाहे तो आपकी आँख ना खुले, अगर अल्लाह ना चाहे तो आप सजदा तहज्जुद ना करें अल्लाह के लिए। जब वो रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना, उसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद की मुलाकात करना चाहता है। अल्लाह से हम कलाम होना इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और मैं समझती हूँ कि अगर किसी इंसान को तहज्जुद नसीब हो गई तो वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। हम इस गलीज़ दुनिया से क्या कुछ
उम्मीदें लगा कर बैठते हैं कि अगर आज मैंने उसको नहीं मनाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर आज मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी ना की तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान आएगा। आप सिर्फ तहज्जुद पढ़िए, देखिएगा कि अल्लाह आपको कहाँ कहाँ से नवाजते हैं। तहज्जुद के नफल बड़े प्यारे होते हैं, इधर इल्तिजाएं उधर कबूलियत, इधर सजदे उधर मौत से। सुबहान अल्लाह, ये कितनी खूबसूरत सी बात है। अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों की दुआओं को ऐसे कबूल करते हैं, ऐसे मौत से करते हैं, उनकी दुआओं को ऐसे सुनते हैं जैसे माँ अपने प्यारे से बच्चे की देखभाल करती है। जब वो रोता है तो उसको देखती है कि वो क्यों रो रहा है, वो भूख के लिए रो रहा है या फिर वो वैसे ही रो रहा है। रब तो उससे ज़्यादा करीम है, नवाजने वाला है। अल्लाह ताला के करीब हो जाओ, हर चीज़ अल्लाह से मांगो, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। अगर कोई खुशी मिले तो नफल अदा किया करो, रब का शुक्र अदा किया करो। या रब, अगर तू नहीं चाहता तो मुझे ये चीज़ ना मिलती। तहज्जुद, एक जो शख्स रात को नमाज तहज्जुद ज़्यादा पढ़ेगा, दिन के वक्त उसका चेहरा खूबसूरत हसीन हो जाएगा। अल्लाह ताला ने तहज्जुद का एक बरकत नहीं रखी, अल्लाह ने करोड़ों बरकतें रखी हैं। अल्लाह ताला उस इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। आप लोग मेरी वीडियो का लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अगर तुम सजदा खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा मस्कीनों को दे दो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम इमाल की ख़बर रखने वाला है। अगर किसी के बुरे अमाल हैं तो भी अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह इतना गफूर रहीम है, वो इंसान से रिस्क नहीं छीनता, वो डेली इंसान को उसके हिस्से का रिस्क देता है। तो हम लोग ही हैं जो अल्लाह के साथ ख़यानत में लगे हुए हैं। हम लोग बुरे अमाल करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, चुगलियाँ करते हैं और बहुत बुरे काम करते हैं, लेकिन अल्लाह हमसे रिस्क को नहीं छीनता। वो यही कहता है कि कोई है जो सच्ची तौबा कर ले और मैं उसको बख्श दूँ। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की तौफीक किसको मिलती है? हज़रत हसन बसरी के पास एक नौजवान आया, कहने लगा, हज़रत दुआ करें कि मुझे तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। फरमाने लगे, ए दोस्त, तुम दिन के अमाल ठीक कर लो, रात के अमाल की तौफीक अल्लाह तुम्हें ख़ुद दे देगा। हमारा जिस्म दुनिया के कामों के लिए रातों को कितनी दफ़ा जागता है, सिर्फ 1 घंटे की इबादत के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता। हमारे पास हमारी नींद बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आज से आप लोगों ने इस वीडियो के बाद, आज से आप लोगों ने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आप लोग तहज्जुद को कभी नहीं छोड़ेंगे, तहज्जुद पढ़ा करेंगे, अल्लाह से दुआएं किया करेंगे। अगर हम गुनाहगार हैं तो फिर क्या हुआ, वो तो माफ़ करने वाला है। फिर क्या हुआ, हमने करोड़ों बार गलतियां की हैं, लेकिन वो तो माफ़ करने वाला है। वो तो नहीं कहता कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, हमारा जिस्म दुनिया के कामों के लिए रातों को कितनी दफ़ा जागता होगा, हम उन रातों की तादाद भी नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला हमें अपने लिए रातों को जागने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, हमें 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, हमें ऐसा बना दे कि हमें गरीब लोगों की मदद करने वाला बना दे। जब आप लोग किसी गरीब की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं और देखते हैं ये मेरा वही बंदा है जिसके पास इतना माल है और वो फिर भी मेरे गरीब बंदों के लिए खर्च करता है। अल्लाह ताला अगर हमें तौफीक ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमें इस नेक काम तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान को ताज़ा कर दे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलूँगी इस तरह का एक और ख़ूबसूरत सा टॉपिक लेकर। तब तक अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू आइडियाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, तहज्जुद के पाबंद बन जाइएगा।